السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين ثم آمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي وبك نستعين يا رحمن يا رحيم آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم کر رہے ہیں صفات الحروف۔ صفات الحروف میں ہم کر رہے ہیں صفات لازمہ متعددہ، صفات لازمہ جن کے مقابلے میں ان کی ضد میں کوئی اور صفت پائی جاتی ہے، وہ ہم صفات کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے ہم حمز اور جاہر کر چکے، جس میں ایئر ہوا کے ساتھ تعلق تھا کہ ہوا کو روکنا ہے یا باہر نکالنا ہے۔ پھر ہم نے کیا رخاوہ، شدہ رخاوہ اور توسط، توسط بینیہ یا توسط ان کے درمیان جو ہے، یعنی کہ آواز کو روکنا ہے جا باہر نکالنا ہے۔ روکنا کس میں ہے؟ شدہ میں۔ باہر نکالنا ہے رخاوہ میں، اور پارشلی روکنا ہے، پارشلی رن کرنا ہے، یعنی تھوڑا رن کرنا تھوڑا روکنا، وہ توسط میں ہے۔ تو پہلے کا ہوا کے ساتھ تعلق پہلے جوڑے کا، دوسرے جوڑے کا آواز کے ساتھ تعلق، تیسرے جوڑے کا آواز کے ڈائریکشن کے آواز کا رخ کدھر کو ہے، یعنی کہ وہ کون سا ہے؟ استعلا اور استفال، استعلا اور استفال، رخ کدھر کو ہے ہوا کا، آواز کا۔ تو پھر یہ ہے کہ استعلا میں ہم نے پڑھا کہ آواز کا رخ جو ہے، تیسرا جوڑا استعلا ہی ہے، یعنی کہ آواز کا رخ جو ہے وہ کدھر کو جاتا ہے؟ آگے کو جاتا ہے۔ وہ کس میں تھا؟ استعلا، زبان کی جڑ پیچھے سے اٹھتی ہے، زبان کی جڑ کا اٹھنا یا نہ اٹھنا، جو یہ استعلا اور استفال لیٹر دونوں میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ زبان کی جڑ یعنی نرم تالو کی طرف اٹھتی ہے، زبان کی جڑ کا نرم تالو کی طرف اٹھنا، جس سے پھر وہ پریشر بلڈ ہو اور اس کا رخ کدھر ہو، وہ ہم نے دیکھا۔ پھر آج ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے ایک اور نیا جوڑا۔ تو یاد رہے کہ یہ 10 ہیں، 5 جوڑے ہیں اور 10 صفات ہیں۔ تو ان 10 صفات کے اپوزٹ کچھ پایا جاتا ہے، یعنی 5 کے اپوزٹ کچھ پایا جاتا ہے، لیکن کچھ صفات لازمہ غیر متعددہ بھی آئیں گے۔ تو غیر متعددہ میں انشاءاللہ ہم پھر ان سب کے بعد دیکھیں گے ایک اور جوڑا رہتا ہے، اس جوڑے کو کرنے کے بعد ایک اور جوڑا رہتا ہے، پھر ہم غیر متعددہ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سفر باقی ہے انشاءاللہ، زندگی باقی تو سفر باقی، ہم اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اتباق میں حروف استعلا لے، حروف استعلا میں سے حروف اتباق میں جو ہے اسی استعلا سات خصداغت نقز میں سے 4 لیٹرز جو ہیں، 4 حروف جو ہیں ان کو ہم علیحدہ کرتے ہیں، ان کو علیحدہ کر کے
तो अलैदा करने के बाद उनको हम किधर डालते हैं? इत्तिबाक में। इत्तिबाक में जो है इसका है आवाज़ का इन्हिसार ज़ुबान और तालू के दरमियान होना। आवाज़ का इन्हिसार तालू और दरमियान के दरमियान होना। और इसके ऑपोज़िट है इन्फ़्ताह यानी कि खुलना, खुलना, खुले हुए होना, खुला रहना। तो फिर हम देखते हैं कि क्या खुला रहेगा। उसमें है आवाज़ का इन्हिसार ज़ुबान और तालू के दरमियान ना होना। आवाज़ यानी कि आवाज़ का इन्हिसार ज़ुबान और तालू के दरमियान ना होना। तो होना और ना होना, बस इतना हमने याद रखना है कि किस में होता है और किस में नहीं होता। तो इनको इंशाअल्लाह ताला अच्छी तरह गौर-व-फ़िक्र करने के बाद हमें पता चलता है किस जोड़े का किसके साथ ताल्लुक है और हमने क्या करना है। तो इंशाअल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आएँगे, प्रैक्टिस से आएँगे, बार-बार दोहराने से आएँगे, बार-बार सुनने से आएँगे, किसी को आगे बताने से आएँगे, ठीक है? ये सारे काम होंगे तो फिर आएँगे इंशाअल्लाह। और अगर हम कहें कि इसको रट्टा लगा लेंगे तो जिस बहन को रट्टे से आता है वो रट्टा लगा सकती है, लेकिन ये है कि समझ के पढ़ें, क्योंकि समझ के पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। रट्टा तो लग जाएगा लेकिन भूल बहुत जल्दी जाएगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि इसमें आज हमारी किस्मत में क्या लिखा है। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करते हैं कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ओ अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा करना, मुश्किलात से बचाना जनी, वला तुअस्सिर और मुश्किलात ना पैदा करना इंशाल्लाह आमीन। इत्तिबाक तबका से है ता बा कौफ तबक। तो हम तबक जो है ये दर्जात को कहते हैं। जन्नत के भी दर्जात होंगे, तबकात होंगे और तबकात जमा है। ये जहाँ से लफ्ज़ निकला है ना जी, वो मैं बता रही हूँ। इसका यानी रूट जो है तौ, बा और क़ाफ है तबक। तो यानी ज़ुबान की जड़, इसमें क्या होता है ज़ुबान की जड़ और नोक का। ज़ुबान की जड़ इस्ताला में हमने 7 लेटर्स देखे, लेकिन इन 4 में ज़ुबान की नोक का भी ताल्लुक है। ज़ुबान की नोक भी आगे से उठी होती है, ऊपर उठती है, जड़ के ऊपर, यानी कि ज़ुबान की जड़ और नोक का ऊपर उठना, ज़ुबान की जड़ और नोक का ऊपर उठना। ऊपर उठने से प्रेशर आता है, ठीक है? तो इन चारों में प्रेशर आता है। पीछे से हमने खुस्सा दाग़ते क़िज़ में दे हमने देखा था कि ग़ाइन, क़ाफ और ख़ा, ये खुस्सा दाग़ते क़िज़ में से हम देखते हैं कि ग़ाइन, ख़ा एन क़ाफ, ग़ाइन, ख़ा एन क़ाफ। ये देखें क़ाफ, ये है इत्तिबाक लेटर्स, सेपरेट हो गए। ये है इस्तिअला लेटर्स, ये सिर्फ़ इस्तिअला है और ये इत्तिबाक। बाजी तस्वीर नहीं आ रही। अच्छा, तस्वीर नहीं आ रही, मैंने तो नहीं सोचा बाजी मैंने नहीं, शेयर की हुई है। नहीं बाजी। ओह! उतनी देर के आप लोग बोले क्यों नहीं? सॉरी। शेयर स्क्रीन। मैं बस बताए जा रही हूँ, मैंने भी पूछा नहीं, मैंने सोचा था मैंने शेयर कर ली हुई है। जल्दी से बता दिया करें कि स्क्रीन शेयर जी नहीं है, ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला अम, अब आपका अब मुझे तो पहला भी बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये हरूफ़े इत्तिबाक है, ये थे क्लोजिंग, ठीक है? क्लोज़ होता है वो एरिया, बिल्कुल ऐसे आवाज़ को जैसे दबाया जाता है ना, कंप्रेशन करना, कंप्रेशन।
आवाज़ का दबाव के साथ इसका ताल्लुक है, आवाज़ के दबाव के साथ ताल्लुक है कि इसको दबाया जाता है, आवाज़ को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है? तो वो एक किस्म का जो पीछे से जैसे रास्ता भी काफ़ी क्लोज़ हुआ हुआ है आगे से और पीछे से भी ज़ुबान की जड़ उठी होती है। तो प्रेशर मैंने बताया था इस्ताला लेटर में कि प्रेशर कैसे बिल्ड होता है। प्रेशर कैसे आता है तो ये 4 हरूफ सॉ, दॉ, तौ, ज़ौ ज़्यादा मोटे होते हैं क्योंकि इनकी मोटाई के साथ इसका ताल्लुक हो जाता है। इस्ताला के बाकी 3 हरूफ इतने मोटे नहीं होते, उनमें इतनी मोटाई नहीं आती। मुख़फ़्फ़म यानी कि नहीं वो इतने होते, इतने मुख़फ़्फ़म सुनाई नहीं देते जितने के ये चारों हरूफ देते हैं। सॉद, दौद, तौ, ज़ौ और हम देख रहे हैं कि सिफ़ात के लिहाज़ से भी इनमें कौन-सा किस से ऊपर है, यानी कि क कौन-सा सबसे ज़्यादा मोटा है और उसके बाद ऐसे दर्जात में ये फिर आते हैं कि कौन-सा ऊपर है और कौन-सा नीचे है। तो ये हरूफ जो कि ऑलरेडी इस्ताला में मौजूद होते हैं, हमें इनको अलहदा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ पहचान करनी है कि कौन-से हरूफ हैं। जब ये चारों हरूफ अदा किए जाते हैं तो प्रेशर जो है ज़ुबान और मुँह की छत जो है, ज़ुबान और मुँह की छत कौन-सी है? तालू है ना? ज़ुबान और मुँह की छत। तो जैसे ज़मीन की छत आसमान है, ऐसे हमारे मुँह की छत जो है, ज़ुबान की छत जो है, वो तालू है। तो यानी तालू का कंप्रेशन ज़्यादा होता है इन 4 में, तालू का कंप्रेशन ज़्यादा होता है। वो दबाव जो है इनमें ज़्यादा आता है वहाँ पे तालू की तरफ और ये हरूफ यानी कि ज़्यादा मोटे यानी कि मुख़फ़्फ़म सुनाई देते हैं। बाकी इस्ताला लेटर के मुकाबले में, है ना? जो कि मैंने पहले बताया क़ाफ़, ग़ाइन और ख़ा है। इनमें इत्तेबाक जो है, यानी कि मुँह में कंप्रेशन पहले से ही मौजूद होता है। हम इन इत्तेबाक वाले लेटर्स में अलहदा से नहीं लाते, ये पहले से ही मौजूद होता है। ये किस तरह मौजूद होता है? ज़ुबान की जड़ पीछे से उठने से। ज़ुबान की जड़ ऊपर उठती है, तो उसके उठने से पहले से ही वो मौजूद होता है इस्ताला के करते हुए। इस्ताला की सिफ़त को अप्लाई करते हुए वो पहले से आया होता है, अलहदा नहीं लाना पड़ता, ठीक है? तो कुछ लोग कहते हैं कि ज़ुबान को दरमियान से चिपका देना है, यानी कि इत्तिबाक का मतलब चिपकाना है। चिपकाना क्या है? ज़ुबान को दरमियान से चिपकाना है। तो ये गलत बात है, ठीक है? कि ये कहते हैं कि दरमियानी हिस्सा भी यानी कि दरमियानी हिस्सा जो है वो भी चिपक जाता है। ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा चिपक जाता है ऊपर जाके। तो क्योंकि पिछला और अगला हिस्सा तो पहले से ही उठाया हुआ है। पहला हिस्सा पीछे वाला हिस्सा और अगला हिस्सा यानी ज़ुबान की नोक और ज़ुबान की जड़ जो है, वो पहले से ही ऊपर उठे होते हैं। हमें ज़ुबान की अगर हम दरमियानी हिस्सा भी उठाएँगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर हम देखते हैं कि दरमियानी हिस्सा कौन-सा है इसका फिर। तो देखते हैं कि जिन लोगों का ख़्याल ये है कि ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर उठता है और जाके चिपक जाता है, तो ये ख़्याल ठीक नहीं है। उसको दुरुस्त करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं होता। क्योंकि ज़ुबान की जड़ पीछे से उठी हुई है इस्ताला करने के लिए, ऊपर उठा रहे यानी कि आवाज़ में प्रेशर बिल्ड करने के लिए। और ज़ुबान की नोक आगे से इन चारों के लिए उठी हुई है अपने मखारिज के लिए, क्योंकि मखारिज से इनका अगर इनका मखारिज जो है जब वो हम पढ़ते हैं मखारिज को हम समझते हैं तो फिर हमें पता चलता है सिर्फ़ और सिर्फ़ मखारिज के लिए ये हमारा ज़ुबान का नोक आगे से उठता है।
क्योंकि कोई इनमें से लेटर जो है जड़ का नहीं है, ज़ुबान की जड़ से अदा नहीं होता, ज़ुबान की नोक का इस्तेमाल होता है इनमें। तो देखते हैं हम इंशाअल्लाह ताला आगे कि हमें यानी कि अगर हम कहते हैं कि चिपक जाएगा दरमियानी हिस्सा जो हमारा ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा दरमियानी तालू से चिपक जाएगा, तो फिर क्या होता है कि वो उसका मखरज खराब हो जाएगा। मखरज के ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा। तो उसका मखरज कैसे ख़राब हो जाएगा? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि मुख़ारिजुल हुरूफ़ में इन लेटर्स के जो 3 लेटर हैं सॉद, तौ और ज़ा के लिए हमारे ज़बान कप शेप दरमियान से बनती है। जब कप शेप बनेगी यानी गड़ा बनेगा तो वो तो नीचे जाएगा ना। घड़ा नीचे को होता है, जैसे कप शेप जहाँ आप कह दें कि यू लेटर अरबी का लेटर इंग्लिश का लेटर यू जो है उसकी शेप थोड़ी-सी होती है। तो अगर ऐसी शेप हो जाएगी, तो फिर तो ऑटोमैटिकली ज़ुबान दरमियान से नीचे गई होगी। अगर हम उसको भी ऊपर कर लेंगे, ज़ुबान की जड़ पीछे से ऊपर है, आगे से नोक उठी हुई है, दरमियान से अगर ज़ुबान भी ऊपर बिल्कुल जाके चिपक जाएगी, तो फिर तो मखरज पूरे का पूरा बंद हो गया, फिर तो ज़ुबान पूरी-पूरी ऊपर चली गई और कोई हर्फ हम अदा नहीं कर सकेंगे फिर ना। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है ये गलत है, इसको ठीक करना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबान की जड़ नरम तालु की तरफ उठती है और ज़ुबान की नोक जो है वो आगे उठी होती है, जो कि ज़ुबान की नोक मखारिजुल हुरूफ के लिए इस्तेमाल होती है। जब ये मखारिज हम यानी कि करेंगे अदा तो फिर ज़ुबान की नोक का इस्तेमाल होगा वरना नहीं। इस्ताला के लिए ज़ुबान की नोक का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है? तो जी फिर यानी कि इसका अगर इसके अलावा लगा दें तो प्रेशर जो है वो और तरफ चला जाएगा। यानी कि अगर ज़ुबान के मखरज यानी मखरज ठीक नहीं निकला और आपकी ज़ुबान की नोक जो है वो गलत तरफ डाइवर्ट हो गई गलत तरफ चली गई और वो जो है आवाज़ भी बदल जाएगी और ज़ुबान के अगर दरमियानी हिस्सा भी ऊपर उठा लिया तो आवाज़ तो निकल ही नहीं सकेगी। तो जब हम सिफ़ात की बात करते हैं, यानी मख़ारिज में ये होता है कि हम ऊपर उठाते हैं नोक को, ज़ुबान की को, तो सिफ़ात की जब बात होती है, तो सिफ़ात की वजह से हम किसी हिस्से को टच नहीं करेंगे। ये याद रखें क्योंकि सिफ़ात की वजह से जहाँ पे हम किसी हिस्से को हम लगाएँगे नहीं। सिर्फ़ मखरज की वजह से लगेगी, जिधर भी जाके लगेगी ज़ुबान की नोक, लेकिन सिफ़ात की वजह से कहीं भी ये टच नहीं होगी। ऊपर उठेगी, जिधर-जिधर से भी उठेगी, लेकिन टच नहीं होगी सिफ़ात की वजह से। सिफ़ात और मखारिज में जहाँ पे फ़र्क करें, ठीक है? फ़र्क करना ज़रूरी है। मखरज के लिए हम ज़ुबान की नोक को आगे इस्तेमाल करेंगे और लगेगी कहीं जाके, जहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है जैसे सौद है और सौद के लिए यानी कि ऊपर और नीचे के ऊपर के 2 दाँत नीचे आए होते हैं और नीचे के 2 दाँत जो हैं, उनके पीछे जब यानी ऊपर के भी आए होते हैं, नीचे के भी पीछे हमारी ज़ुबान आती है, तो वो थोड़ा-सा जैसे नहीं दोनों के दरमियान लगती है, जैसे दोनों के दरमियान लगने के वो होती है कि वो ऐसा लगता है जैसे दोनों में लग रही है, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। तो इस तरह लेकिन तौ जो है तौ के लिए हमारी ज़ुबान सौद से भी ज़्यादा ऊपर उठती है और इंशाल्लाह जो ये हम अलग-अलग करते हैं तो फिर में हम इनमें देखेंगे। तो ये हमने याद रखना कि सिफ़ात में कहीं भी ज़ुबान लगेगी नहीं जाके सिर्फ़ ऊपर को उठेगी ही, जिधर-जिधर से भी उठी होगी। पीछे से उठती है इस्ताला के लिए और प्रेशर बिल्ड हुआ होता है और फिर हम देखते हैं कि इत्तिबा के लिए उस प्रेशर को क्या करता है यानी कि ज़ुबान की जड़ को ऊपर उठाया जाता है
तो ये नहीं कहा था वहाँ पे जब मैंने इस्ताला का बताया था कि वहाँ जाकर चिपका देना है। ये मैंने नहीं कहा था इस्ताला के लिए भी कि आप अपनी ज़ुबान की जड़ को वहाँ ऊपर जाके नरम तालु की तरफ चिपका दें, चिपकती नहीं है जाके, ठीक है? इत्तबाक में भी मखरज के अलावा ज़ुबान का कोई हिस्सा नहीं जाके लगेगा। अब हम देखते हैं तौ और ज़ौ, तौ और ज़ौ। ज़ौ और तौ में दो तकरीबन सिमिलैरिटी है इसमें, तो इसलिए हम इनको दोनों को देखते हैं। तौ में ज़ुबान की नोक और सामने के 2 दाँत 2 दाँतों का जो गम लाइन होता है, वहाँ पर लगेगी ना ज़ुबान की नोक जाके तौ के लिए अत, अत, अत। तो अत जहाँ पे लगती है तो आप फ़ील कर लेते हैं कि कहाँ है और पीछे से जड़ जो है ऊपर उठी होगी, ज़ुबान की जड़ पीछे से ऊपर उठी हुई होती है, तो प्रेशर जो है आगे की तरफ धकेलते हैं। आगे सामने का हिस्सा भी ऊपर उठा हुआ है, यानी प्रेशर सामने आ गया। अब आगे सामने का ज़ुबान की नोक भी ऊपर उठी हुई है, तो प्रेशर दरमियान में दब जाएगा। तो ये दब जाना जो है इसका ऐसे क्लोज़ हो जाना प्रेशर का, जैसे आपने हाथों को दोनों को ऐसे आप क्लोज़ करते हैं, तो इस तरह वो एक किस्म का वहीं जाके वहीं दब जाएगा, है ना? तो तो फिर क्या होता है जब ऐसा होता है तो लफ्ज़ हर्फ जो है, ये तौ जो है ज़्यादा मोटा सुनाई देता है। जब प्रेशर आगे से पीछे से ज़ुबान ऊपर है और प्रेशर जो है वो आगे की तरफ जाएगा और क्योंकि आगे से नोक भी ऊपर उठी हुई है, तो प्रेशर वहाँ पे दब के रह जाएगा। ये कप शेप फिर बन जाता है तौ के लिए। पहले भी मैंने बताया बार-बार, अगर वो ना बना हुआ हो, तो यानी कि ये क्या कप शेप ना बनी हुई हो। तो आवाज़ के अंदर मोटाई नहीं आएगी, क्योंकि ये मोटे पड़े ये सबसे ज़्यादा ये चारों लेटर जो हैं, सबसे ज़्यादा मोटे पड़े जाने वाले तमाम हरूफ के मुकाबले में इस्ताला लेटर के मुकाबले में भी ये ज़्यादा मोटे हैं क्योंकि इस्ताला में 3 और लेटर्स हैं, तो उनके मुकाबले में ये सबसे ज़्यादा मोटे हैं। तो ये फिर यानी कि मोटाई इनमें नहीं आएगी क्योंकि अगर दरमियान वाला हिस्सा भी ऊपर ले जाएँ तो आपका इस्ताला तो होगा ही नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। इस्ताला नहीं होगा पहले तो इस्ताला ही होता है, इत्तिबाक बाद की बात है। तो अगर इस्तिअला नहीं होगा तो इत्तिबाक कहाँ से होगा ना? वो कहाँ से फिर होगा? तो इत्तिबाक के बारे में बहुत सारी ये गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं, तो इनको अपने ज़हन में ठीक कर लेना है क्योंकि जब दरमियानी हिस्सा ऊपर जाएगा तो पिछला हिस्सा खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। तो फिर हमें तो अगर नीचे आ गया तो इस्ताला होगा नहीं, इत्तिबाक भी नहीं होगा क्योंकि मोटा हर्फ होगा नहीं, तो इसलिए दरमियानी हिस्सा छोड़ दें अब। दरमियानी हिस्सा नीचे जाएगा, ठीक है? कप शेप बनेगा। बस इतना याद रखें कि सौद, तौ और ज़ा के लिए ज़ुबान दरमियान से कप शेप बन जाती है। पीछे से भी उठी हुई जड़ भी और नोक भी उठी हुई और कप शेप बनी हुई। दौद के लिए मैंने और बताया था, तो इंशाल्लाह दाद पे आएँगे तो फिर हम देखते हैं, क्योंकि जब दाद का मखरज तो थोड़ा-सा ना मैंने बताया था कि उसकी शक्ल बदल जाती है ज़ुबान की थोड़ी-सी, यानी कि जब वो उसका डायरेक्शन बदलता है, वो ज़ुबान मूव होती है, स्लाइड होती है, तो शक्ल जो है उसकी और हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला आप अगर अगर मैं एक मिसाल दूँ जो कि हम सब बहुत अच्छी तरह इस मिसाल को जानते हैं, बचपन में भी लड़के ख़ासकर करते हैं, लड़कियाँ का भी शौक होता है गुलेल, गुलेल जो होती है, गुलेल के साथ जब खेलते हैं, ना? तो ये बहुत अच्छी मिसाल है इसके लिए कि अगर आप गुलेल जो है, वो उसको ज़हन में रखें, कैसे होती है कि उसके 2 हिस्से बंधे हुए होते हैं दोनों तरफ से, है ना? लकड़ी के ऐसी ली होती है जिसमें वो दोनों तरफ से बाँधा होता है,
तो और दरमियानी यानी कि ज़ाहिर है कि दोनों हिस्से बांधे हुए हैं और दरमियानी हिस्सा जो है वो पीछे ले जाके उसमें स्टून रखते हैं। पीछे ले जाके जो भी रखे उसमें, तो वो पीछे ले जाके उसको प्रेशर बना के फिर फेंकते हैं तो वो लगता है निशाने पर। अगर वैसे ही उसको रख के लगा दें तो कहाँ लगेगा ना? तो प्रेशर बना के लगाते हैं, तो फिर वो यानी कि जाके निशाने पर लगता है जिधर उन्होंने निशाना लगाना होता है। जब उसके अंदर स्टून रखा जाता है, तो फिर बात मैं कर रही हूँ। वैसे नहीं, वैसे तो वो बंधे हुए हैं। तो हम इस प्रेशर को फ़ील ऐसे कर रहे होते हैं कि जैसे यानी कि जब वो प्रेशर आता है ना, तो फ़ील ऐसे होता है, हम महसूस ऐसे करते हैं कि फ़िज़िकल तौर पर यानी हमारी ज़ुबान वाक़या ही ऊपर उठी हुई है और लगी हुई है उसके साथ, चिपकी हुई है। लगी हुई ऑलरेडी लगती है, लेकिन हालाँकि वो लगी हुई नहीं होती। हालाँकि वो लगी हुई नहीं होती, जुड़ी हुई नहीं होती। वहाँ पे उठी ही होती है, लेकिन जुड़ी नहीं होती। एक फीलिंग आती है, तो शायद इस फीलिंग की वज़ह से लोग कहते हैं कि वो जुड़ जाती है। हालाँकि फ़िज़िकली नहीं, यानी कि जो हिस्सा है हमारी ज़ुबान का वो फिर जाके ऊपर टच नहीं करता, लगता नहीं है, ठीक है? तो इसमें फिर यानी कि वो प्रेशर जो है ऊपर इतना ताकत से जाकर लगा होता है कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे ज़ुबान ऊपर जाकर चिपक जाती है, चिपकी हुई है, लग गई है। तो ये फिर हम देखते हैं कि अगर ज़ुबान पूरी तरह यानी पूरी ज़ुबान ऊपर चली जाए, तो कोई हिस्सा, कोई हरफ क्योंकि कोई हिस्सा नीचे नहीं रह गया, तो आवाज़ यहाँ से निकलेगी, तो सब बंद हो गया, तो कोई भी हर्फ नहीं निकाल सकेंगे। तो ये इत्तेफ़ाक है कि जब दोनों किनारे ज़ुबान के ऊपर उठते हैं और दोनों किनारे कौन से? ज़ुबान की जड़ और ज़ुबान का आगे वाला हिस्सा, नोक। और प्रेशर आता है दरमियानी हिस्से में, तो कंप्रेशन भी वहाँ पे फिर आ जाता है। यानी भी दबाव फिर थोड़ा-सा दब भी जाता है वो, इत्तेफ़ाक के लिए। आत्तो, 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 ता, आत्तो, ता, ता जब हम कहते हैं ना, तो ऐसे ही ज़ा जो है, ज़ा ज़ुबान की नोक ऊपर वाले 2 दाँतों के सिरे से लगती है ना, क्योंकि तौ के लिए तो ऊपर गम एरिया पे लगी थी ना, गम लाइन के पे 2 दाँतों के। तो ये 2 दाँतों के सिरे से लगती है और ज़ुबान की जड़ ऊपर चली जाती है इस्तिअला की वजह से, क्योंकि इस्तिअला का ताल्लुक ज़ुबान की जड़ के ऊपर उठने से है, ये याद रखें। तो तो वो ऊपर जाएगी जब इस ताला की वजह से दरमियान से नीचे चली जाएगी, इसमें भी नीचे जाती है ज़ा, इसीलिए मैंने कहा कि सिमिलैरिटी पाई जाती है इनके, ये हैं भी नेबर्स ही, थोड़े से ही दूर हैं मखारज के लिहाज से भी। तो ये जैसे यू शेप होती है या कप शेप होती है, तो वो बन जाती है दरमियान से ज़ुबान, और पीछे से आने वाला प्रेशर जो है बड़ा अच्छे से दब जाता है। क्योंकि पीछे से आने वाला जो प्रेशर है, ज़ुबान की नोक भी ऊपर उठी हुई है और नीचे गड़ा दरमियान में बना हुआ है, तो बहुत अच्छी तरह से वो प्रेशर जो पीछे से आ रहा होता है इस्तिअला का, वो आके इत्तिबाक में दब जाता है। यानी वहाँ पे इत्तिबाक क्या है? दबना, ऐसे क्लोज़ हो जाना किसे, तो और वो सारा ऊपर मुँह की छत की तरफ चला जाता है। प्रेशर किधर जाता है? मुँह की छत की तरफ। अ, ज़, अ, ती, अ, ज़ू, आप कह के देखें, टाइम लगा के कहिए कि अज़्ज़ा, अज़्ज़ी, उज़्ज़ू नहीं करना, ठीक है? तौ और ज़ा की तख़फ़ीम बहुत सिमिलर होती है, यानी इनकी मोटाई बहुत सिमिलर होती है। तो स्वाद स्वाद ज़ुबान की नोक जब ऊपर और नीचे वाले दाँतों के जो होता है ना, ऊपर नीचे वाले दाँत जो हैं, 1 मिनट सॉरी, मैंने अंदर करने के लिए बहनों को, ठीक है। ज़ुबान की नोक जब ऊपर और नीचे वाले दाँत
जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो टिप जो है आपकी यानी ज़ुबान की नोक जो है उन दोनों के पीछे होती है। यानी ज़ुबान की नोक किधर आप कहें ना खड़ी किधर होती है? पीछे जैसे कोई कहे दरवाज़ा बंद है और पीछे खड़ा है कोई, दरवाज़े के बिल्कुल ऐन। तो इस तरह ज़ुबान की नोक वहाँ पे होती है। जैसे लाम में हम इसकी एक साइड अगर लाम को देखें हम हर्फ लाम जैसे लिखा जाता है, मैं लिखने की बात कर रही हूँ। हर्फ लाम जो है जब लिखा जाता है तो एक साइड उसकी छोटी होती है और एक साइड लंबी होती है। जहाँ से हम शुरू करते हैं वो लंबी साइड से शुरू करते हैं और दूसरी साइड छोटी उसकी होती है जहाँ पर हम खत्म करते हैं लिखना उसको। तो ये फिर क्या होता है कि बिल्कुल ऐसी ही शेप ज़ुबान की हो जाती है जब स्वाद के लिए अगला हिस्सा जो है ऊपर उठता है, तो बिल्कुल ऐसी शेप हो जाती है ज़ुबान की। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता होता है जैसे कि उसके ऊपर उठने की वज़ह से यानी ऐसा लगता है जैसे ना एक साइड से ज़्यादा है और दूसरी साइड से आप कहें अस अस सा अस सी अस सु अस सा अस्सी, अस्सु, अस्सा तो इसमें सीटी भी आती है। अस्सा, अस्सी, अस्सु, अस्सु, स्वाद मोटा भी, ठीक है? अब मैं एक-एक आपको पॉइंट अलग-अलग पहले मैंने अस्सा कह के आपको बताया कि किस तरह इसमें लाना है, फिर मैं इसमें सीटी लाई मैं। अब मैं इसमें मोटाई लाती हूँ अस्सा, अस्सा, सा, सा अब अस्सा जहाँ पे आके इत्तेफाक हो जाता है अस पे अस अस सीटी भी आ रही है और इत्तेफाक भी हो रहा है, प्रेशर पूरा होल्ड है क्यों? क्योंकि ज़ुबान की नोक भी आगे से उठी हुई है, ठीक है? तो इसका बहुत ख़्याल रखते हुए पढ़ना है। तो इसके ऊपर जो है आगे वाला हिस्सा ज़ुबान की नोक ऊपर उठने से इसका इत्तेबाक हो जाता है। ज़ुबान की नोक ऊपर उठने से वो इत्तेबाक क्या हो जाता है? वो दब जाता है प्रेशर जो है, दब जाता है। हमें चाहिए कि वो होना चाहिए यानी कि अगर वो नहीं होता तो गड़बड़ होती है यानी जो है कंप्रेशन दबाव जो है वो होना चाहिए, ठीक है? तो हमें चाहिए कि उसको लाएँ। अगर हम पीछे से ज़ुबान की जड़ ऊपर नहीं उठाए हुए, आगे से मखरज में ठीक तरीके से नहीं लगाए हुए होते और ज़ुबान ज़ाहिर है ऑटोमैटिकली घड़ा नहीं बनी होती, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है? ये याद रखें कि स्वाद का कंप्रेशन यानी दबाव जो है, वो कम होता है तौ से। तौ से तौ की निस्बत स्वाद का कंप्रेशन कम होता है, दबाव कम हो जाता है, क्योंकि ज़ुबान की नोक जो है कम ऊपर जाती है। तौ के लिए किस तरह गई? उसने आगे से बंद कर दिया। बिल्कुल, आपकी यानी कि आगे वाला हिस्सा मुँह बंद कर दिया क्योंकि बिल्कुल जाके गम एरिया पे ऊपर के 2 दाँतों के लगी। लेकिन स्वाद के लिए इतनी ऊपर नहीं उठी, तो जिसकी वजह से कंप्रेशन कम आएगा, दबाव कम आएगा। तो इसलिए इसमें मोटाई जो है तौ की निस्बत कम आएगी। लेकिन फिर भी दबाव आ गया, यानी फिर भी इत्तेबाक हो गया ज़ुबान की नोक आगे उठने से। अस्सा, अस्सी, अस्सु। तो पहले आपने इस्ताला ठीक करना है, यानी ज़ुबान की जड़ को ऊपर उठा के प्रेशर लाना है, फिर आपका इत्तेबाक ठीक आएगा। अगर इस्ताला ठीक नहीं है, तो आपका इत्तेबाक यानी कि प्रेशर भी दबेगा नहीं। आगे लूप होल कहीं छोड़ दिया, गड़बड़ कर दी तो फिर ये नहीं होता। दौद हमारा जो आखिरी हर्फ है, इसका दौद जो है इसमें काफ़ी बहस-व-मुबाहसा होता है, क्योंकि दौद जो है ज़ुबान की साइड्स जो है, ज़ुबान की साइड्स ऊपर 8 दाँतों यानी कि दाँत जो हैं आगे से लाम का भी एक-एक उसने लिया होता है।
वाइड रेंज में लगती है, ज़ुबान की सीधी लाइनें जो होती हैं, क्योंकि पीछे से ज़ुबान सीधी लाइन में आती है, आगे आके कर्व होती है, आगे आके मुड़ती है दोनों तरफ, मुड़ के ऐसे जैसे लाइन आप सीधी खींचे और आगे आके मोड़ के उसको जोड़ दें एक-दूसरे से, तो इस तरह वो ज़ुबान होती है। तो पीछे जो सीधी लाइनें होती हैं ज़ुबान की जैसे आगे से छतरी की अम्ब्रेला की शेप हो या सी शेप हो, जो आगे ज़ुबान का हिस्सा है, जो जहाँ पे 2 लाइनें मोड़ के जुड़ रही होती हैं, लेकिन पीछे से लाइनें सीधी होती हैं, जो मैंने करवट कही थी ज़ुबान की, साइड जो थी तो अगर दोनों साइडों से आप इमेजिन करें कि दोनों साइडों से लगी हुई हैं, तो यानी कि पीछे से शुरू होकर ज़ुबान की जड़ जो है, उसके करीब से वो लाइनें शुरू होकर बहुत आगे तक आती हैं, बहुत आगे तक लगाना होता है उनको, दाँतों के भी। ज़ुबान की करवट को दाँतों से लगा देते हैं, यानी कि वहाँ पे जाके लग जाते हैं, टच कर जाते हैं। जब अगर आप मुस्कुराएँ, है ना? अगर आप मुस्कुराएँ वो हँसना नहीं, मुस्कुराना। जब आप मुस्कुराएँ तो आपकी ज़ुबान वहाँ पे लगी महसूस हो। जब आप मुस्कुराएँ तो वहाँ पे ज़ुबान आपकी लगी हुई महसूस हो। किसका मैं कर रही हूँ? दौद का। यानी सीधा हिस्सा ज़ुबान की करवट का सारा लग जाएगा। जितना सीधा हिस्सा है, अगर दोनों साइडों से लगा रहे हैं तो दोनों साइडों के सारा लगा हुआ होता है। दरमियानी हिस्सा ज़ुबान का जो कि जीम, शीन और या का मखरज नहीं है। जो हिस्सा दरमियानी हिस्सा ये हाफ़ातुल लिसान का दरमियानी हिस्सा होगा। हाफ़ातुल लिसान से वो लिया जाएगा, ना कि जीम, शीन वो वसतुल लिसान है। ठीक है? वो अलहदा है, उसका मखरज उसके बाद आता है, ठीक है? ज़ुबान का वस्त जो है, वस्तुल लिसान वो उसके बाद आता है। तो ये हाफ़ातुल लिसान का जो है हिस्सा उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? अब मेरी ज़ुबान मेरे सामने हो तो मैं आपको पिक्चर तो मैंने पहले दिखाई हुई है, इंशाल्लाह मैं फिर दिखा सकती हूँ लेटर ऑन। तो जी फिर जी है कि 1 मिनट में आपको थोड़ी-सी तस्वीर भी और दिखा दूँ। ये देखें जहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ऊपर भी है, तो ये देखिए कितनी जगह तंग है, ऊपर भी लगी हुई है और दबाव जब ऊपर जाता है, पीछे से आगे से बंद होता है तो वो दब जाता है दबाव, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला क्लोज़ करना एक क्लोज़ होता है दबाव और वो फिर किधर जाता है जो देखना। ये हरूफ़े इत्तिबाक हैं आपके लिए और इस्तिअला सेपरेट हैं, तो इत्तिबाक और इस्तिअला में आप पहचान करें इनकी, ये हमारा दौद है, ठीक है? एक मैं बड़ा थोड़ा-सा और आपके लिए कर देती हूँ अगर आपको और नज़र आ जाए ठीक? तो ये हमारा दौद है, ठीक है? दौद में क्या हो रहा है, जहाँ पे आप देखें, ये देखिए ऐसे बोट सी शक्ल बनी हुई है, बोट सी, बोट क्या होता है? कश्ती, है ना? कश्ती की सी शक्ल बन जाती है। तो ये जो है कंप्रेशन फिर इधर आ रहा होता है। तो ये बोट में क्या होता है? बोट में ये है कि जब हम ऊपर से भी वो पीछे से भी उठी होती है और आगे से भी उठी होती है और दरमियान में सीटें होती हैं, है ना? तो वो जो सीटों वाला हिस्सा है, ये बिल्कुल क्योंकि ज़ुबान जो है आगे की तरफ स्लाइड करती है। जब दौद कह रहे होते हैं तो खींच पड़ती है ज़ुबान को आगे की तरफ जा रही होती है। तो वो जो शेप है उसकी वो लानी है, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला इसकी शेप में बहुत ध्यान रखना है। तो ये हमारा सौद था, सौद ये देखिए कहाँ ज़ुबान की जो लगी हुई है नोक तो ये तौ के लिए बिल्कुल ऊपर उठी हुई है, इसके लिए इतनी नहीं है, आप देख सकते हैं इसलिए अब ये जो हिस्सा है इसमें प्रेशर बिल्ड जो होता है और दब जाता है, प्रेशर पीछे से आ रहा होता है जहाँ पे आके फिर दब जाता है इत्तिबाक के लिए
اور ज़ा के लिए ज़रा सा उसके भी लिए तौ के नीचे है, तो वो इस तरह कंप्रेशन जो है उसका फिर जहाँ पे होता है, क्योंकि ज़्यादा जगह है तो मोटाई फिर कम आएगी। जगह जगह ज़्यादा है तो मोटाई फिर कम आएगी। तो इंशाल्लाह इनको अगर आप याद रखते हैं तो जे हमारे सारे हरूफ इस्तिअला थे, ठीक है? सारे इस्तिअला थे और इनमें से फिर हमने 4 चुन के हमारे हरूफ क्या बने? हमारे हरूफ इत्तिबाक बन गए। तो इस्तिअला और इत्तिबाक। तो देखते हैं हम इंशाल्लाह इनको जब हम देखते हैं ना कि ये एक ग्रुप जी है, 2 ग्रुप मैंने उस वक़्त भी कहा था, इसमें 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप इन 4 का और एक ग्रुप इन तीनों का, ठीक है? तो भारी कौन है? ये सारे 4 ये भारी हैं, इनकी निस्बत, क्योंकि इनके लिए ज़ुबान की नोक आगे से ऊपर नहीं उठती, इंशाअल्लाह ताला। माज़रत ख़्वाह। तो इसके लिए हमारी साइडें भी ऊपर उठी हुई हैं और जहाँ पे यानी कि प्रेशर भी पीछे से आ रहा है, क्योंकि ज़ुबान की जड़ भी तो ऑफ़ कोर्स ऊपर उठी हुई है इस्ताला में, इस्ताला होता ही तब है। तो साइडें भी उठी हैं, ज़ुबान की जड़ भी पीछे से उठी है, ज़ुबान की नोक भी आगे से उठी है दौद के लिए, ठीक है? तो ये साइडें जो हैं लगी हुई हैं, साइडें लगती हैं क्योंकि इसका मखरज है। हम मखरज में लगाएँगे, मैंने पहले बताया था आपको मखरज में लगाएँगे और जो है सॉरी मैंने अब देखा किसी शाज़िया बहन का आया हुआ था कि स्क्रीन शेयर करें, लेकिन मैंने वो जब इधर ध्यान था और लोगों को अंदर भी करना होता है, जिसकी वज़ह से फिर वो मेरा ध्यान बँट जाता है। तो मैंने देखा नहीं, माज़रत ख़्वाह हूँ इसके लिए। तो यानी कि मैं किधर थी अब मैं भूल जाती हूँ फिर। कि जब दोनों साइडें भी लगी हुई हैं, पीछे से भी ज़ुबान की जड़ भी ऊपर उठी हुई है, लगी हुई नहीं मैं कह रही, उठी हुई है। लगी कहाँ पे होंगी? मखरज के लिए वो लगी होंगी पीछे वाली दाढ़ों पे 5 दाढ़ों से, चाहे वो दोनों साइडों पे हों, चाहे वो लेफ्ट साइड पे हों या राइट पे हों। तो बहरहाल मैं दोनों साइडों की इस वक़्त बात कर रही हूँ। के दोनों साइडों से लगी हुई है, पीछे से ज़ुबान की जड़ भी उठी हुई है, आगे से ज़ुबान का नोक भी उठी हुई है और दाल के मखरज के फिर करीब चली जाती है। ज़ुबान की नोक क्या करती है? दाल के मखरज के करीब जाती है, मैं ये नहीं कह रही कि लग जाती है वहाँ पे। जाके, क्योंकि जब लगा देते हैं तो गड़बड़ होती है, वहाँ पे लगती नहीं है। जैसे इख़्फ़ा हम कर रहे होते हैं ना, तो इख़्फ़ा में के कहीं टच नहीं कर रही होती ज़ुबान, मुअल्लक़ होती है। तो इस तरह थोड़ी-सी मुअल्लक़ सी हो जाती है, करीब जाकर, दाल के मखरज के करीब जाकर थोड़ी-सी मुअल्लक़ सी होती है इख़्फ़ा पे, जैसे होता है। तो बोट की शक्ल लगती है, फिर ज़ुबान को जब उसको देखा जाए कुदरती तौर पर तो ज़ुबान आगे की तरफ जा रही होती है और बोट सी शक्ल स्ट्रेच होके बन रही होती है। तो ज़ुबान की पीछे वाले हिस्से को ऊपर उठाने से इस्तिअला बन जाएगा और साइडें लगाने से 5 दाँतों की के ऊपर साइडें लगाने से हमारा मखरज ठीक हो जाएगा और इसमें कंप्रेशन जो हवा का जो आवाज़ का दबाव है प्रेशर का, वो हमारा इत्तिबाक हो जाएगा, ठीक है? दबाव जो है वो इत्तिबाक हो जाएगा, इसीलिए ये 4 लेटर आपको मोटे लगते हैं। तो इसको हम कह के देखते हैं अब अब द अब दी अब दू। तो इसके लिए ये है एक और भी बात है। अगर आपको मुश्किल लगती है, क्योंकि ये मुश्किल लेटर है और क्या मुश्किल इसलिए भी है हमारे लिए लगता है हमें, क्योंकि हम इसको ज़ाद कहने के आदी होते हैं, ठीक है? जब आप मुतहर्रिक यानी हरकत वाला इसको पढ़ते हैं, तो पहले टच होता है फिर अलग होता है। जब हम हरकत वाला दौद कहते हैं, द पहले टच होता है, यानी जाके मखरज पे दौद ऐसे होता है और फिर जाके अलहदा होता है, फिर अलहदा हो जाता है। दौद, दौद आप कहें, फिर पता चल जाएगा कि ठीक है।
जब ये जो है ना मुश्किल है इसकी प्रैक्टिस करना भी, जब तक हमें समझ ना हो, आपकी साइडें जब तक नहीं अच्छी तरह लगेंगी तब तक आपकी ज़ुबान की नोक दाल के मखरज पर लगती रहेगी। ये याद रखना है। जब तक साइडें जाके नहीं चिपका देंगे, साइड नहीं दाँतों 5 दाँतों से 5 दाढ़ों से लगेगी पूरी तरह, तब तक आपकी जो नोक है ज़ुबान की वो दाल के मखरज के ऊपर जाके लग जाएगी, ठीक है? तो इसको जब लग जाती है नोक तो फिर वो तो दाल के मखरज पे चली गई ना, तो हमने उसको प्रिवेंट करना है, उसको बचाना है दाल के मखरज के ऊपर जाने से। तो फिर ये कर सकते हैं कि ये एक ठीक तरीका नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए और अपना मखरज जो है बदलने के लिए, यानी अपनी हैबिट जो है, जो आदत हुई हुई है, उसको बदलने के लिए पहले आप ये इख्तियार करें और बाद में फिर इसकी असली जगह पर ला जाएँ। तो वो क्या है, अगर आप जो है ना ज़ुबान की नोक, वो नीचे दाँतों के गम पर लगा दें, निचले दाँतों के गम पर थोड़ी देर लगाएँ, फिर साइडें ज़ुबान की ऊपर करें, यानी साइडें जो है वो प्लेटों पर लगाएँ, पिछली दाढ़ों की। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए, प्रैक्टिस किसकी? प्लेटों पे आपकी हाफ़तुल लिसान लगने की, यानी कि ज़ुबान की करवट जो है, ज़ुबान की साइडें जो हैं, वो जब अच्छी तरह लग जाती हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि अब मेरी लगती हैं, तो फिर वो जो ज़ुबान की नोक नीचे वाले गम एरिया पे है ना, नीचे वाले दाँतों के गम एरिया पर, उसको छोड़ दें फिर उसको परे कर दें। अगर आपकी जब हैबिट बिल्ट हो जाएगी, आदत हो जाएगी इसको प्लेटों पे लगाने की, तो फिर उनको छोड़ दें क्योंकि वो असल मखरज नहीं है, ठीक है? वो मखरज नहीं है, जो कि हमने सिर्फ़ प्लेटों के लिए प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो वो फिर गलत हो जाएगा, जगह गलत है ना, हमारा मखरज ही खराब हो जाएगा। तो टिप नहीं लगानी कहीं भी, इसके लिए दौद के लिए टिप कहीं नहीं लगती, ठीक है? सिर्फ आदत बनाने के लिए थोड़ी-सी कि प्लेटें हमारी यूज़ हो रही हैं कि नहीं, जब आपकी प्लेटों पे लगी हुई है तो मखरज ठीक है, जब आपकी ज़ुबान पीछे से उठी हुई है तो आपका इस्ताला ठीक है? अगर आपके दोनों हो रही हैं और ज़ुबान की नोक आगे से ऊपर है, उठी हुई उठती है, क्योंकि दाल के मखरज के करीब जाना है, गम एरिया, गम लाइन जो है ऊपर वाले 2 दाँतों की अंदरूनी हिस्से की, तो उसके करीब जो जाना है तो फिर उठेगी ना ज़ुबान की नोक भी। तो उठी हुई है तो फिर क्या होता है, इसमें इस लेटर का मखरज फिर ठीक होता है। यानी सब कुछ फिर ठीक होता है, प्रेशर जो है वो भी ठीक होता है, तो फिर क्या होता है, इत्तेबाक हो जाता है फिर। ठीक है? इंशाअल्लाह ताला। तो इसके ऑपोज़िट इन्फ़िताह है, तो इन्फ़िताह जो है इंशाअल्लाह हम ज़िंदगी रही तो कल करेंगे। तो आज ये हमारा इत्तेबाक हो गया। इत्तेबाक की क्या है? कंप्रेशन ऑफ साउंड, कंप्रेशन ऑफ साउंड, आवाज का दबाव, आवाज की को दबाना, आवाज को दबाना। तो इन्हिसार आवाज़ का फिर कहाँ होगा? ज़ुबान और तालू के दरमियान। बस इतने हिस्सों को, इतने जा जो बहनें नहीं बहुत लंबा-चौड़ा कर सकती, जो बहनें कर सकती हैं वो लिखें और करें, नोट्स बनाएँ, जो नहीं कर सकती वो इतना याद रखें कि आवाज़ का इन्हिसार जो है ज़ुबान और तालू के दरमियान होना चाहिए और ज़ुबान की जड़ पीछे से उठी होनी चाहिए, ज़ुबान की नोक आगे से ऊपर उठी होनी चाहिए। लगना कहीं नहीं है, सिर्फ़ मखारिज के लिए लगना है और कुछ नहीं है, ठीक है? मखारिज के लिए लगेगा, पीछे से प्रेशर ऑलरेडी ज़ुबान की जड़ ऊपर उठने से लगा हुआ है, आ रहा है और उस प्रेशर को हमने दबा देना है, बस इंशाल्लाह। तो जहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया एक हिस्सा इस सिफ़त का, तो ये हमारी सिफ़त नंबर 4 है जिसका एक हिस्सा कंप्लीट हुआ है, यानी एक इसका ऑपोज़िट अभी रहता है। तो ऑपोज़िट इसका क्या था? क्या है? हम इन्फ्ताह कहते हैं, तो इन्फ्ताह में होता है खुलना, खुला रहना, खुला हुआ होना।
खुला हुआ होना, वो बंद होना होता है जैसे हम अपने हाथों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बंद हो गया, ट्रैप हो गया ना, आवाज़ ट्रैप होगी वहाँ पे। तो जब ज़ुबान नीचे से नीचे है और फिर इसके जे देखें इंशाल्लाह हम देखते हैं कि इफ्ताह में हम क्या लेंगे इसको, ए, किस तरह इफ्ताह को हम इत्तिबाक से अलहदा करेंगे। जे हम कल को ही करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अगर मैं उसको शुरू करने लगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे बहुत सारे और भी चीज़ें रह जाएँगी। तो ये मैं आपके लिए रहने देती हूँ, ताकि आप देख सकें कि हम क्या बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। अगर हमारी प्रैक्टिस जो है वो इंशाल्लाह मैं अभी खोलती हूँ आप लोगों के लिए स्क्रीन प्रैक्टिस के लिए। आप लोगों को दिखाई दे रही है स्क्रीन? मुझे लगता है कि जी सिस्टर। आपका कुरान आ रहा है साथ में? कुरान नहीं आ रहा, वो आ रहा है डिफरेंस बिटवीन अलिफ तबाक एंड इस्तारा। ठीक है, कुरान मैंने सोचा कि अगर आ रहा है तो वो बेहतर है। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, मैं कुरान को ही लाती हूँ फिर। ठीक है, आ गया अब, अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया कि नहीं आया? जी सिस्टर। जी आ गया, जी आ जी गया। आ गया बाजी। आ गया। आ गया, थोड़ा सा बोर्ड जज़ाकिल्लाह। चला हैं? गया फिर। फिर चला गया, सॉरी सॉरी। चला क्यों गया है? क्योंकि मैंने न्यूज़ शेयरिंग क्लिक कर दी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर कबीरा। था, है तो वहाँ पे ही, लेकिन क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट। मेरी स्क्रीन पे है लेकिन आप लोगों के लिए क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट। शेयरिंग है शेयरिंग शेयरिंग। जी, आ गया अब। ठीक है, अब आ गया। नहीं बाजी। अच्छा, मैं आपको पूछ जल्दी देती हूँ और शेयर नहीं करती, और क्या देती हूँ कि आ गया कि नहीं। कितना टाइम जाया हो जाता है ना इन चीजों में, आ गया, लेकिन अब आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सूरतुल फील देखते हैं। इसमें सूरतुल फील अपनी अपनी जगह पे बड़ा कर लें, ठीक है, अपने पास खुद बड़ा कर लें, क्योंकि जब आप खुद बड़ा करेंगे तो वो सूरतुल फील, क्योंकि वो नीचे है जरा जाके, तो वह वहां पे रहेगी। जब अपना कुरान खोल लें, ठीक है, जब आपका कुरान खोल जाएगा आपके सामने तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। अब हम बढ़ते हैं अपने थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो मुझे बाद में बताइएगा प्लीज। और फिर प्रैक्टिस से मेरा ख्याल, जब हम रिपीट करते हैं बार बार तो उससे समझ आनी शुरू हो जाती है इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब के लिए आसानी पैदा करे। आमीन सुमा आमीन। मैं एक रिफत बहन, आप शुरू करें। हाँ जी बाजी। कौन सी बाजी? सूरत अल फील। सूरतुल फील। अपना कुरान साथ में खुला रखा करें, क्योंकि उससे बहुत हेल्प होती है, ठीक है। जी हाँ जी। आ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मीनश मीनश यानी मी को शैतानिर लंबा नहीं करना, मी उसको आनी चाहिए, उसकी हरकत की पूरा टाइम देना, हरकत का, ठीक है। हरकत के लिए पूरा टाइम नहीं देंगे ना तो वो फिर आएगा नहीं, ठीक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترى كيف فعل تارا ربك را کو موٹا کریں. علم ترى كيف فعل تارا نہ ربك کرے نا، لمبا نہیں کرنا. ترى علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بی اصحاب الفیل. نہیں، آپ بأصحاب بی کو کیوں کھینچتے؟ آپ اپنے حرکت والے حروف کو کھینچ رہے ہیں. بأصحاب الفيل. آگے پڑھوں باجی؟ نہیں بس اس کو بتائیں مجھے، کوئی ہے ان میں؟ ہاں جی سواد ہے باجی. سعود ہے، تو سعود میں کیا ہم نے کرنا ہے؟ اطباق بھی ہے ہوں، اور رخابہ بھی ہے. ہاں جی اس میں ہوں. حمس بھی ہے. فحسہ شخص سکت. سکت. ہاں جی. ہوں. نہیں، رخابہ اس میں اتباق میں اس میں کیا کرنا ہے وہ آپ کو کیا سمجھ آئی اتباق کی؟ زبان کا پیچھے سے جڑ اٹھنی چاہیے اور آگے تھوڑا سا آگے بھی آتی ہے نا زبان کی نوک، پھر اس میں اطباق ہوتا ہے. تھوڑی سی آگے آتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اس کا تو مخرج ہی آگے ہے. اس کا تو زبان کی مخرج نوک ہی آگے آگے لگتی ہے. ہاں جی زبان کی نوک آگے لگتی ہے. ہاں جی ہاں جی، کیونکہ اس کا سواد تو میں آگے مخرج ہی لگتی ہے. آگے ہے. ہاں ہاں جی جی، ہاں جی سواد میں آگے لگتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن اوپر کثیرہ. اور نیچے کے دونوں اتباع دانتوں کیسے پہ ہوتا ہے؟ اتباع کیسے ہوتا ہے اس میں؟ اتباع کیسے ہوا؟ زبان کے بیچ کا تالو کی طرف بلند ہوتا ہے. نہیں میری نہیں بہن، یہ ہے نا نہیں، کہ زبان کے اتباع بیچ کا درمیان میں رہ پریشر، جاتی ہے. ہاں جی پریشر جو پریشر پیچھے سے آ رہا پیچھے تھا، سے آ رہا ہوتا ہے. ہاں جی استعلاء کی وجہ سے پریشر پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے. ہاں اس جی کو زبان کی جڑ اور یعنی کہ آگے نوک بھی اٹھی ہوئی ہے تو وہ جی درمیان میں دب جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پریشر جو ہے درمیان میں دب کے رہ جاتا ہے. کمپریشن اگر آپ سمجھتے ہیں نا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو تو جی یا پھر وہ کوئی بے ہوش ہوا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایسے کمپریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی چیسٹ کو ایسے ہاتھوں سے دبا رہے ہوتے ہیں وہ نا، اس جی کو سانس واپس لانے کے لیے نا. تو یہ فرسٹ ایڈ میں پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے. تو اس طرح وہ یعنی کہ اس طرح اس کو دبانا دبتا ہے وہ نا. دبانا اس یہ ہوگا کہ اس کو کمپریس کرنا کیا ہوتا ہے، وہ یہ دب رہا ہے، وہ جو پریشر پیچھے سے آیا ہے وہ دب رہا ہے. جیسے آپ اپنے ہاتھوں کو جوڑ دیں تو جو کچھ اندر چیز ہو دب جائے گی. ٹھیک ہے، جی ہاتھوں کو جوڑ دیں آپس میں، جو اندر چیز ہے جب جو بھی ہے وہ دب جائے ہاں گی. جی وہ ہے نا؟ دب جائے. تو اس طرح انشاءاللہ تعالی جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آگے بہن کون سی؟ رفت بہن بول رہی تھی. میں نے پڑھا ہے باجی. ہاں جی آپ بول رہی تھی نا ابھی. تو جی اب آئی فون سے 2 بہنیں ہیں. شہناز بہن ہے، شہناز بہن آپ کو پڑھیں پلیز اگلی آیت. میں نہیں ہوں باجی آئی فون میں. نو ٹھیک ہے، آپ پڑھیں اگلی آیت. باجی بہت باریک ہے. اچھا، آپ اپنا قرآن ساتھ رکھتے ہیں؟ ہاں لیکن ابھی رکھی نہیں ہوں باجی. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ٹھیک ہے، آئی فون میں جو بہن ہے نمبر 1 وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لے اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، اگر پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آگے والی آیت پڑھیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم فذلک علم طرف سے پہلے انہوں نے پہلی آیت پڑھی، آپ دوسری پڑھیں پلیز. اچھا باجی علم ترى یا شاید
सबसे आगे नीचे है, सबसे नीचे है, हाँ जी जी। आखिरी जो आयत सूरत है वो। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होता है ना, तो आप अपनी जी कुरान खोल लिया करें जिससे आप पढ़ रहे होते हैं हर रोज, जी। ठीक है। कोई और बहन उतनी देर पे पढ़ ले प्लीज, 1 मिनट। दूसरी बहन आईफोन से जल्दी से, आईफोन से कोई और बहन भी है वो पढ़ ले जल्दी से, मैं पढ़ूं? पढ़ ले, आप पढ़ ले, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर राह, राह ना करे, फिर राह होल्ड करे वहां पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम जज अल कैदहम फी तदलील आर नहीं 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 नहीं, इसको ठीक करें, आप आगे नहीं बढ़ना, इसको ठीक करें। आलम जज अल कैदहम फी तदलील आलम यजअल आइन आ हल कैद आलम अल कैदहम फी तदलील फी तदलील फी तदलील तद, तद नहीं होगा ना, ये तद जब आप कर रहे हैं क्योंकि आपकी जुबान जड़ पीछे से उठी नहीं हुई है जुबान की, इसीलिए आप तद दाल के मखरज पे जा रहे हैं आसानी से। ना आपकी साइडें लगी हुई हैं और ना आपकी जुबान पीछे से उठी हुई है, और आसानी से आप तद कह रहे हैं, तद दाल पढ़ रहे हैं। असल में ये मैं कहूँ तो दाल पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। इस दौद को दाल पढ़ रहे हैं आप। तदलील तद मुंह गोल भी नहीं करना, इसमें मुंह में गलाई नहीं आएगी, सिर्फ आपकी आपको जो है जुबान की जो करवट पीछे से है ना, उसको ऊपर वाले दांतों 5 दाढ़ें जो हैं उनसे जाके लगा दे, तो फिर आपका ठीक होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करें जिस तरह मैंने बताया है, जी तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस करेंगे। किसकी हम कर रहे हैं, कौन सा लेटर है जो दुआ इसमें आया दुआ है? दुआ दौद, हाँ। द्वाद नहीं, दौद, दौद, ओके। जब दौद कहते हैं तो फिर आप फील करें कि कहाँ पे लग रही है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इसकी, क्योंकि जो जज्म के साथ आ रहा है, जो कि फिर दाल के मखरज से बहुत आसानी के जाके साथ टच कर जाती है जुबान। जब प्लेटों पे लगी नहीं होती जुबान उधर चली जाती है, तो प्लेटों पे लगाना है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अब अगर सरैया बहन खोल सकती हैं जी। अपने आप को तो कर लें। यही आयत पढ़ूं बाजी कि अगली आयत पढ़ूं? अगली पढ़ लें। अरसला रा को अलैहिम। मोटा करें और लाम को बारीक नहीं, लाम को लंबा नहीं करना। रा को मोटा करें और लाम को लंबा नहीं करना। अच्छा मैं पढ़ती हूँ, 1 मिनट। जी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, बिअस बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, फी तदलील, फी तद, तद जुबान पीछे रहेगी। जब आप तद ऐसे करेंगे, जुबान साइड पे लगाएंगे, तो फिर रहेगी उसके ऊपर, पीछे रहेगी दाल के मखरज से, वरना बहुत आसानी के साथ जाके लग जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। व आरसाला, व आर, रा मोटा, और इसमें थोड़ी सी तकरार भी है। व आरसाला अलैहिम, अलैहिम आइन के लिए मुंह खोल दे। व आरसाला अलैहिम तैरन, 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 तैरन। इसको तो को भी मोटा, रा को भी मोटा। तैरन अबाबील, अबाबील, बील नहीं करना, बील ये नहीं होगा, ठीक है। तारमीहिम, ता बारीक रहे, तारमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम, क्या आइन फिर आप लाएं, आस, आस स्वाद को मोटा करें, आसफिम माकूल, मा जी होगा क्योंकि ये हमारा हमजा जज्म के साथ है, जहां पे जर्किंग साउंड आएगी, झटका लगेगा।
क्या आसफिम कूल, आसानी से लाम को फिर छोड़ दे, कूल बाहर नहीं आए, कूल नहीं करना, ठीक है। ठीक है, आप पढ़े, आप जो आप पढ़ रही थी। तर तैरन अबाबील। क्या आप ये है, ठीक है। सही है बाजी। तैरन फिर पढ़े इसको, क्योंकि आदि से नहीं, फिर आप रोक के पढ़ सकते ना फिर। जी। फिर पढ़े इसी आयत को। वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील। आइन के लिए थोड़ा सा और मुंह खोल दिया करें, क्योंकि जबर वाला है अलैहिम। ना, आइन जबर जी के वाले हरूफ के लिए मुंह जी। खोला जाता है। अलैहिम वैसे बारीक है, ठीक है। अलैहिम तैरन अबाबील। नॉट टू तैरन बैड, अबाबील। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जी इसको प्रैक्टिस करेंगे आप जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसमें जी कौन सा लेटर है जो आपको इत्तिबा का नजर आ रहा है? इत्तिबा का कोई लेटर है इसमें? नहीं बाजी, मुझे नहीं समझ आया। जो मैंने 4 लेटर बता रही थी, 4 लेटर जो जी। स्क्रीन के ऊपर थे, तो वो कौन जा वो कौन कौन से थे? तो जा। तवाज़ा थी, हाँ ठीक है। जी जी 2 और थे। जी। वो दो मुझे अब याद नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अभी बहन ने बताया था इसमें जी पहली आयत में एक आया था, जी। और आप लोगों का वो पता नहीं क्या हाईलाइट भी हुआ है, तो सौद है, ठीक है। स्वाद हम स्वाद दाता हम। तवाज़ा, ठीक है, इसको याद करें इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा स्वाद। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। ठीक है, अब 1 मिनट, परवीन बहन आप जहाँ पे अभी हैं तो आ जाए। जी। आगे पढ़ें प्लीज। आगे पढ़ो। अच्छा, यहाँ से तरमीम से ना। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फिर पढ़ें, फजअलहुम फिर पढ़ें उसको। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन आप तर सिज्जील। तर नहीं करना, क्योंकि ये इसका तकरार बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, तर तरमी में होल्ड वहां पे करना है ना, तो ऑलरेडी एक एक 2 बार तकरार हो जाएगा, बस बहुत लंबा तर नहीं करना फिर। तरमीहिम बिजहरतिम मिन अब आप सिज्जील गलत पढ़ गए हैं लफ्ज को, इसको ठीक करें। बी बिजहरतिम मिन नहीं नहीं, फिर पढ़े, शायद को दोबारा पढ़े, आप गौर नहीं कर रहे हैं। कोई और ना जहरतिम बहन बोले। तरमीहिम बिजारतिन मिन बिहिजारा ही भी है ना उसमें। बिहिजारतिम मिन सिज्जील तिम फजअलहुम कअस्फिम अच्छा, आप अगला माकूल। पढ़ने के चक्कर में हैं, लेकिन इसको ठीक करें आप प्लीज। अच्छा, तरमीहिम बिहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। तर जी। तरमीहिम भी, जब ये हिम भी है, इसमें क्या है आप मुझे बताएं, क्योंकि इसको आप इग्नोर कर रहे हैं पढ़ने में। हिम हिम भी क्या है, जहाँ पे कौन सा असूल है आपको, मेरा ख्याल माशाल्लाह पता होगा। जब हिम भी कर रहे हैं हम, तो क्या असूल है? ठीक है, हम रहने देते हैं इसको। जहाँ पे है इख्फाए शफवी है, जी जी, एक ठीक है, शख्सी है। इख्फा शफवी है, तो उसको अदा करना है। तारमीहिम तरमीम भी नहीं करना, तारमीहिम नहीं भी लिखना। हिजारा आप क्या कर रहे हैं, तो इसमें नहीं आ रहा ना, इख्फा शफवी हम नहीं कर रहे। शफवी यानी कि अपने होंठों को वहां पे होल्ड करके रखना है। हाँ, अब जी। बहुत सख्ती नहीं देनी, सख्ती से होल्ड नहीं करना, बस बंद करके रखना है। जी हिम भी तो वो हिम भी हिजारा, भी ही को भी लाए, हिजा हिजारा, रा को मोटा करे, जी। तिम तिम
इख्फा क्या जया इदगाम है हो गया गुन्ना जी के साथ तिम म्यू म्यू ये इख्फा हो गया सिजील सिजील। आप इतनी जल्दी से नहीं आगे बढ़ सकते जब तक जी इन सब असूल को अप्लाई ना कर लें, ठीक है। ठीक है। इंशाल्लाह और इनको ठीक है पढ़ें पढ़ो फिर। हाँ जी। जी फिर और मीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। आगे पढ़ो। नहीं नहीं। इनमें तो कोई नहीं है ना दूसरा, ये सारे किधर गए हैं नहीं फिर। जी जी इंशाल्लाह ये हमारे इन्फिताह में चले जाएंगे, ठीक है। जी जितने लेटर बाकी हैं वो सारे किधर चले जाएंगे, इन्फिताह में। इनफिताह हमें इनफिताह इन्फिताह यानी इनफिताह इनके लिए वो खुला रहेगा, जो प्रेशर नहीं बिल्ड होगा ना, खुला रहेगा एरिया, कोई दबाव नहीं होगा इसका। जाहिर है प्रेशर नहीं होगा, जुबान पीछे से कुछ के लिए उठेगी इंशाल्लाह, वो हम देखेंगे। लेकिन वो प्रेशर जो होना चाहिए वो इत्तेबाक वालों के लिए वो नहीं होगा, क्योंकि इनमें कोई लेटर नहीं है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, जज़ाकल्लाह। एंड नुशीन बहन आप आए प्लीज। जी। फजअलहुम फिर पढ़े फजअल जी फिर पढ़े। जी जी फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। फजअलहुम का हम जहाँ पे फजअलहुम का आइन और स्वाद में आइन को मोटा करना है कि नहीं। जी नहीं नहीं करना। कअस हाँ आस और स्वाद को सौत अब को मोटा मोटा करना करना। है कि नहीं। जी सौत को तो करना है, उसको स्टॉपिंग रूल अभी जो आपने पढ़ाया वो भी होगा ना इस पे। हाँ जब जज्म भी जज्म आ रही है ना। आस जी जी आस तो अब जो इत्तेबाक भी हो रहा है, इस्ताला भी हो रहा है, जिन जुबान की हम्म, जड़ पीछे से ऊपर उठी हुई है और प्रेशर ला रही है। यानी जी प्रेशर आ रहा है और प्रेशर क्योंकि पीछे से आ रहा है, तो अब क्या होगा इसमें हम्म स्वाद के लिए इत्तेबाक हो जाएगा, क्योंकि हम प्रेशर को दबा देंगे जब वो ऊपर की तरह उठ रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि भी आगे से भी बंद है पीछे से भी बंद है। यानी बंद क्या है कि उठे हुए हैं, है ना। जी बहुत नारो है रास्ता उनका आगे और पीछे से, तो वो प्रेशर किधर जाता है, वो फिर थोड़ा सा ट्रैप सा हुआ हुआ है, तो उसको दबा देंगे हम, ठीक है। जी इंशाल्लाह ऊपर जो उठा हुआ है उसको दबा देंगे हम, ठीक है। हम्म तो ये फिर वो इसमें दोनों हो रहे हैं ना। जी जी इसमें दोनों चीज इसमें तालिया भी हो रहा है और जो अभी तबक भी हो रहा है, बिकॉज इत्तेबाक इसमें भी हो आप रहा स्टॉप मुतबक स्टॉप हो जाएगा। इनको मुतबका हरूफ कहते हैं। मुतबका इत्तेबाक मुतबका के मुतबका हरूफ होते हैं। ए, मुतबका तो और इन्हें इन्हें इन्फिताह के मुनफिताह, ठीक है। जी मुनफिताह यानी जिन के ऊपर वो अप्लाई हो जाए उनको कहते हैं, ठीक है। जी जी मुनफिताह अच्छा तो ये मैं कह रही थी काफ को आप उस दिन कह रही थी ना, कोई कैफ कहता है कोई, और इसका रियल क्या है क्या कैफ। क्या क्या कैफ ही है। कैफ जैसे हम कहते हैं, काफ भी नहीं है, मोटा भी हो जाएगा। और कैफ कैफ जैसे कहते हैं वो भी नहीं है, हम्म कैफ भी नहीं है, ठीक है। वो कैफ कहने से बचाना, जैसे वो अपनी मुंह को जैसे नहीं वाइड करते, उसको हम्म करने से बचाना है। वो जब वाइड बहुत करते हैं कैफ, आप कह के देखिए कैफ। हाँ ये रॉन्ग है ना ये वाला कैफ, जैसे ये दो तीन मतलब है अलग अलग, कोई ये कहता बहुत है इसको ना। आसानी, हाँ बहुत आसानी से निकलने वाला एक काफ है और कैफ कैफ कैफ, और एक ऑफ है। फर्क आ गया का है ना, जी जी ऑफ और कैफ। वो कैफ वो ये तो वो लाइट दोनों होगा, वो वाला डॉट वो जो डॉट्स वाला होता है वो दो हैवी हो नुक्तों जाता वालों है ना। से है, हाँ। तो ये फर्क ऑटोमेटिकली उनके कहने में आ जाता है। लेकिन अगर कैफ कैफ करेंगे, वो जुबान जो आपने जबड़े हैं जरे हम कहते हैं ना वराछे अपने मुंह की, अगर आप लें तो उनको खोलते हैं ज्यादा, वाइड कर देते हैं ना। एक हम्म एक किसी को नकली ये सी गलत है स्माइल ना दें आप, तो फिर हैं।
یہ اچھا ہم یوں پڑھیں گے نا اس کو، کاف پڑھیں گے، ہاں کاف کیف پڑھیں گے، کیف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے کیف نہیں پڑھیں گے، جی جی بس یہ ٹھیک ہے، مجھے کلیئر کرنا تھا بیکاز یہ یہ ہے، دفعہ سنا ہے نا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوبارہ پڑھ لیں اس کو. جی، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اچھا جہاں پہ آپ کے فاجہ آئین کو آپ نا ٹھیک کرنے کے لیے موٹا کرتے ہیں، مجھے ہاں وہ نا لگتا ہے گلے ایسا. سے نکالنے کے لیے ہاں آپ کا ہو رہا جی موٹا ہو رہا جی میری بہن، اس کے لیے اسمائلی آپ کا منہ ہونا چاہیے آئین کے لیے. فَجَعَلَهُمْ اس طرح فاجہ آپ تھوڑا سا اپنا منہ اوپر کر لیں جیسے آپ اسکائی کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا فجعل وہ نکل بھی آئے گا اور بریک بھی رہے گا، ٹھیک ہے. فَجَعَل جی اب بالکل چینج لگ رہا ہے نہیں مجھے۔ ابھی بھی آپ کا موٹا ہے، ابھی بھی اس کی آپ پریکٹس کریں گے. شیشے کے آگے کھڑے ہوں اور دیکھیں کہ آپ کی منہ کو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، منہ جی کی شیپ کیا ہوتی ہے. اچھا میں اوپر اسکائی کی طرف دیکھوں گی اور پھر آپ کا اسمائلی فیس ہونا، پہلے آپ کا منہ اسمائلی کرے، جی کر لیا۔ یعنی کہ ایسے جیسے آپ اسمائل دے رہے ہیں کسی کو ایسے کریں، پھر جی فاجہ اور باقی نہیں کرنے کے لیے صرف آئین کے لیے، کیونکہ وہاں اوپر کرتے ہوئے کہ اور نہ بگاڑ دے انشاءاللہ تعالی. جی جی اس کو آئین کی صرف آئین کی پریکٹس کرے، زبر والے آئین کی پریکٹس آپ کریں اور پھر زیر والے آئین کی پریکٹس کریں شیشے کے آگے کھڑے ہو کے، پھر جزم والے آئین کی پریکٹس کریں. تو آپ علیحدہ علیحدہ صرف آئین کی پریکٹس کے لیے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی یعنی کہ باقی سواد کے لیے آپ اوپر نہیں کریں گے اور کیف کے لیے بھی اوپر نہیں کریں گے. جی جی اس کو بچانا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اس میں آپ کو پتا ہے کہ سواد کو ہم نے ڈسکس بھی کر لیا، تو یہی ہے اتباق جس میں دونوں چیزیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ. جہاں پہ ہم نا تھوڑا سا ارلی آج ختم کریں گے کیونکہ ہماری نماز بہت ڈیلے ہو جاتی ہے اور ہم پڑھ بھی نہیں سکتے شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ ابھی ٹائم جو ہے بالکل 1 منٹ میرے لیے ہوتا ہے، ابھی ہوا ہوتا تو یعنی 6 بجنے سے 1 منٹ پہلے، تو وہ میں نہیں نماز پھر ادا کر پاتی نا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے ریکارڈنگ بند کر لوں انشاءاللہ.